Hello students, today I Sonali Divedi welcoming you to the chapter 2 of class 6, that is components of food. So before getting into the topic, I would like to say that eTuition is an online platform that is providing a beautiful education. You have the access to YouTube. Also you can download it from the Play Store. So, getting into the topic, we will today discuss what is food, functions of food, nutrients, name of major nutrients, and taste for the presence of the nutrients. What are the essential nutrients that can be known from the given food material? So, what is food? इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? इससे पहले हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फूड का बहुत सारा वेराइटीज़ होते हैं. फूड के वेराइटीज़ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं. सो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है ना? रॉ मटेरियल्स व्हाट एग्जैक्टली इज एडेड इनटू द फूड. Like we have discussed for chapati, there we add atta and water and then salt, so that becomes its ingredients. So food is nothing but a fuel to our body. So here we have presented a beautiful food pyramid for you to understand better what exactly food describes. We can take it from the example of meat, milk, butter, ghee, fish, some raw vegetables and some snacks item and fruits and moreover others. So the beautiful food pyramid describes that we have a variety of food and all these food provide an essential nutrients to our body. So before starting what exactly nutrients mean, we must know what actually food does in our body. So before that, we have seen that food is fuel for your everyday life. Eat right to stay strong and healthy. So यहाँ पर फूड को फ्यूल बोला गया है. एक्चुअली फ्यूल का मीनिंग कहाँ भी यूज़ करता है? गाड़ी में, मोटर व्हीकल्स में. तो वहाँ पर क्या, जब मोटर व्हीकल्स के इंजन में आप लोग फ्यूल डालोगे तो वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स उतना वर्क करेगा. सो फूड भी यहाँ पर एक फ्यूल जैसा काम किया कि हमने जितना इनटेक किया एक दिन में, बॉडी उसी हिसाब से इतना एक्टिवली काम किया. अगर फूड इनटेक कम हो जाता है तो बॉडी भी वीक हो जाता है, हेल्दी नहीं रह पाता. सो परफेक्ट डाइट इन द फूड इज ए वे टू लीड अ हैप्पी लाइफ एंड ए हेल्दी लाइफ. सो अगर देखिए, अगर यहाँ पे आपका एनर्जी, द फूड फ्यूल का एनर्जी अगर ई के पास आ जाता है, जैसे गाड़ी में अगर ई के पास जाता है तो धीरे धीरे अगर पेट्रोल कम होता है तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी. वैसे ही अगर यहाँ पर एफ के पास आ जाता है तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, जितना डिस्टेंस वो कवर करना चाहिए अच्छे से वो कवर करके आपको उतना डिस्टेंस तक पहुँचा देगी. वैसे ही फूड का फ्यूल अगर ई तक पहुँच गया तो वैसे ही आप लोग वीक पड़ जाओगे एंड आपके स्टडीज़, आपका होमवर्क्स एंड देन मोर ओवर योर डे टू डे लाइफ schedules, you cannot do it perfectly. So food is regarded as a fuel to our body. जितना हमारा परफेक्ट डाइट चाहिए उतना लेना चाहिए. We must avoid junk food for that also. So we must add appropriate amount of every food material that adds a value to our life. So food is said to be a fuel. And also I have mentioned that eat right to stay strong and healthy. अगर हम करेक्ट अमाउंट में खाएंगे, दैट आज बहुत भूख लगी है तो आज मैं 2 किलो मीट खा लूँगी, कि भूख नहीं है तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी. तो वैसे होने से बॉडी का इम्बैलेंस हो जाएगा, डाइजेशन प्रोसेस इम्बैलेंस हो जाएगा. सो करेक्ट अमाउंट में खाना चाहिए, राइट प्रोपोर्शन में. देन हियर वी हैव टू मेक अ डिफरेंशिएशन. Left picture shows some food item of snacks item like some coffee, then some fried items, chocolates, here chips, and the right side shows green leafy vegetables, fruits, carrot and some other. So इधर बताइए कौन सा हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहता है? Exactly, the green leafy vegetables, fruits, they add a nutritive value to our life rather than the junk foods or the fast foods. ये सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, एक कभी कभार खाना, ओके दैट्स फाइन, बट वी मस्ट नॉट ऐड इन आवर डेली लाइफ बेसिस. They add, that is the green leafy vegetable
vegetables or the fruits, they add a nutritive value and they must be added in our consumption in day-to-day life. So from this now we can conclude what actually food has the function in our body. जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ये हम लोगों को डिजीज से मतलब प्रोटेक्ट करेंगे. देन सम कैरेट पकड़ लो तो ये विटामिन देंगे. देन यहाँ पर एप्पल्स और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आइटम ये हमारे बॉडी में कुछ मिनरल्स देंगे. सो ओवरऑल दे गिव अस अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट वैल्यू. न्यूट्रिएंट्स क्या क्या जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर विटामिन्स, मिनरल्स एंड देन फैट्स, प्रोटीन. सो ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमें इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आइटम से कंज्यूम हो सकते हैं. नाउ so I have also mentioned that functions of food is build new cells and tissues for the growth, stay healthy and heal themselves, prevent and fight infections. तो पहला आ गया फंक्शन build new cells and tissues for growth. So new cells कैसे डेवलप करेगा. Now first of all we also know from the seen that our human body, the major unit of a human body is made up of cell. बहुत छोटा, मतलब एक एग्जाम्पल ले लो कि एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं. तो एप्पल एक बड़ा सा पीस है, उसको हम पहले 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे. देन 1 piece we will take and again we will divide into 2 pieces. We will continue the division, we will continue the cutting and there ultimately will come 1 piece which cannot be further divided. That small piece works as a cell in our body. That is the smallest piece and that smallest piece is also regarded as cell. ये नहीं कि एप्पल का स्मॉल पीस सेल हो गया, नहीं, सेल भी वही स्मॉलेस्ट पीस है जो कि और फर्दर डिवाइड नहीं हो पाता है. सेल को कंस्टिट्यूट करेंगे तो टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज का कंस्टिट्यूट करेंगे तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स को कंस्टिट्यूट करेंगे देन ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन वी प्रोड्यूस अ ह्यूमन बॉडी. सो सेल, अगर सेल डिवाइड मैंने बहुत सारा न्यू बना तो वो सेल का जो ग्रुप हो जाता है वो हो जाता है टिश्यूज, और टिश्यूज अगर डेवलप हुए तो बॉडी का ग्रोथ ही बढ़ेगा. तो ये रहा फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड हील देमसेल्व्स. सो as we have also studied that some food materials like the carrot or some fruits, they provide a vitamins to our body. एंड विटामिन्स का मेजर फंक्शन रहता है कि ये जितने सारे डिजीज या फिर इन्फेक्शंस रहते हैं इससे हमको प्रिवेंट करेंगे. ऑटोमेटिकली व्हेन दे आर प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस फ्रॉम द बॉडी, दे आर हीलिंग आवर बॉडी, दे आर मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफ इन आवर बॉडी. और जब बॉडी हेल्दी रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा, वी विल बी एबल टू परफॉर्म आवर वर्क प्रॉपरली. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शंस. वही आगे कि ये इन्फेक्शन से लड़ेंगे, जो हार्मफुल जो वायरसेस हो रहे हैं ये सब अगर हम करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल खाएंगे सो वी विल बी हेल्दियर एंड वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और एनी वायरल इन्फेक्शंस. सो दीज आर द मेंशन्ड फंक्शंस ऑफ द फूड. देन तब से मैं बता रही हूँ कि न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं. सो व्हाट एक्चुअली न्यूट्रिएंट मीन? न्यूट्रिएंट मीन components of the food that add a healthy value to our body in proper aspect. Proper aspect meaning proper ratio. मतलब हमको अभी वेजिटेबल्स का एक करेक्ट अमाउंट चाहिए कि हमें सपोज ब्रिंजल या फिर टमाटो ये सभी एक प्रोपोर्शन, करेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ज़्यादा होने से भी वो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम करता है. सो करेक्ट अमाउंट में खाना चाहिए और मतलब क्या डेली बेसिस पे उसको रेगुलरली प्रिपेयर रहना चाहिए, उसको उतना ही करेक्ट अमाउंट में इनटेक करना चाहिए, तभी जाकर वो एक हमारा न्यूट्रिएंट, गुड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. सो न्यूट्रिएंट्स इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ फूड. कंपोनेंट मीन्स द पार्ट ऑफ द फूड, दैट पार्ट विच एड्स अ हेल्दी वैल्यू. हेल्दी वैल्यू बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रिटिव वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो वंडरफुल वैल्यू, मतलब जो गुड लाइफ प्रोवाइड करता है. सो गुड लाइफ इज प्रोवाइडिंग एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द न्यूट्रिएंट्स. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द major component of the nutrients. So major components of the nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and additional benefits are also provided by dietary fibers and water. So first आ गया carbohydrates. ये सब का फंक्शन सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बस आज
आप लोग इतने मेजर न्यूट्रिएंट्स का नाम याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब हो गए 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स. And dietary fibers and water, they are the additional supplement. They do not provide any kind of nutrient, but they cannot be also neglected. They provide the ease to remove the undigested food or maintain the body temperature in the body. So these are also the essential part, but these are not the major nutrient. They are only the sub categories. जैसे हम लोग लिविंग बींग्स होता है एक मेन कैटेगरी, लिविंग बींग्स के मेन कैटेगरी में सब डिवीजन हो जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. वैसे ही न्यूट्रिएंट्स का मेन कैटेगरी हो गए 5. ये रह गया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और उसके सब डिवीजन या फिर सब कैटेगरी में आ जाते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. डाइटरी फाइबर्स इज ऑफन टर्म्ड एज roughage. It has a valuable function, that is it helps for the removal of the undigested food from the body. जो undigested रहते हैं, जैसे डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, पहले फूड गया माउथ से आ गया ऑइसोफेगस से वो वाला स्टमक में रहेगा, डाइजेशन होगा फॉर 2 to 3 hours, और देन ये वाला प्रोसेस होकर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन. सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाते हैं. सो अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड विद द फोकस ऑफ द डाइटरी फाइबर्स. सो दीज फाइबर्स हेल्प्स फॉर द ईज ऑफ द रिमूवल ऑफ द undigested food and eliminate them as the feces from the anus. Next, now we will study that how can we know what exact food contains the amount of the nutrient. So पहले हम पढ़ेंगे starch. Starch is also called as a carbohydrate component. So starch के लिए हम क्या लेंगे, suppose हमको पता है कि राइस में होता है starch. So we will take a food ingredient, suppose rice we have taken, then we will do the iodine test. यहाँ पर बोला है कि iodine starch test किया जाएगा. It is a chemical reaction to detect the presence of the starch. So अगर वो राइस में हम क्या करते हैं ना, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिए. आयोडीन एक्चुअली येलो कलर सोल्यूशन होता है. See here I put that yellow color solution and a blue black solution. Iodine actually in general is yellow in color. So जब हम कुछ फूड मटेरियल में डालते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन राइस में हमने डाल दिया आयोडीन. अब आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वी विल सी ए कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर. अगर ब्लू ब्लैक आ गया सो इट शोज दैट पॉजिटिव रिजल्ट, दैट इज स्टार्च इज प्रेजेंट. अगर नहीं आया so it shows that it does not contain any starch. वो वही येलो कंपोनेंट रह गया. ओके, सो यहाँ पर मेन फोकस मस्ट बी दैट ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है या नहीं. ब्लू ब्लैक कलर आ गया सो इट इज कंटेनिंग स्टार्च. नेक्स्ट वी विल मूव टू द टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में क्या करते हैं ना, सपोज प्रोटीन्स के लिए हम मिल्क ले सकते हैं या फिर आप और कोई फूड आइटम, सॉलिड फूड आइटम लेंगे. सो दैट इंग्रेडिएंट इज टू बी टेकन, इट हैज़ टू बी मेड पाउडर. Then the food is put in the test tube and added copper sulfate solution to it. जब copper sulfate solution add करेंगे तो क्या होगा, copper sulfate solution is actually this blue color. ओके, सो अगर उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा, दैट इज वायलेट कलर शो करेगा. अगर वो नहीं होगा प्रोटीन्स देन इट विल रिमेन एज सच एज ब्लू कलर. सो दैट शोज दैट इट इज पॉजिटिव रिजल्ट, दैट इज प्रोटीन्स. सो जो भी प्रोटीन फूड होगा, सपोज मीट ही ले लेंगे, मीट को ले लेंगे तो उसमें प्रोटीन्स रहते हैं. तो मीट को जब हम मैश करके टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो वो वाला वायलेट कलर ही शो करेगा. बट अगर हम कैरेट को लेते हैं, कैरेट में तो विटामिन आ जाते हैं तो वो वही ब्लू कलर ही रहेगा. सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एक्चुअली ब्लू इन कलर, इसलिए वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा कलर, वो नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है. ओके, सो जिसमें प्रोटीन्स रहते हैं वो वाला वायलेट ही शो करेगा. नाउ दैट इज द टेस्ट फॉर फैट्स. फैट से तो हमको पता है कि ऑयली पैटर्न्स. ओके, हमने पहले से भी पता है कि फैट बहुत ज़्यादा हो गया है. सो ऑयली, द रिचनेस ऑफ ऑयल इन द फूड. सो यहाँ पर हमने वही ऑयल को ही देखना है. सो वी विल टेक द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, देन रैप इट इन द पेपर. आफ्टर रैपिंग वी विल पुट इट इन द सनलाइट. वी विल सी अ पैच ऑफ ऑयल. अगर ये पैच ऑफ ऑयल आ जाता है सो दैट कंटेन्स फैट. हम यहाँ पर घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, बट अगर कोई फैट मटेरियल नहीं होगा तो वो वाला ऐसे ही रह जाएगा, जैसे यहाँ पर कोई पैच ही नहीं आ रहा है. सो दिस इज द रिजल्ट.
today we have made a shorter discussion that is just an introduction to the nutrients chapter. Then how can we confirm that what actual material is containing the perfect nutrient? So इतना ही रहा. Next class में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे ना, what are the function of the nutrient, अगर ये न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी हो जाता है तो किस किस डिजीज़ को हम मतलब सर्वाइव करेंगे और वो डिजीज़ से हम कैसे relief पा पाएंगे. So these are the points that is to be discussed in the next class. So you must be now totally aware of the nutrients, what actual nutrients are, and how can we confirm that the food material is containing the nutrients. Hope you like the class. That's all. Thank you.